الیکشن کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ماہ کے اندر اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑی خبر دے دی۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، پی ڈی ایم کے ساتھ مشترکہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ہوگا۔ مشکل حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، ہزاروں ارب روپے کی بجلی، گیس اور ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ ایسے شہر ہیں جہاں 82% بجلی چوری ہوتی ہے۔ نگران حکومت پر نواز شریف اور آصف زرداری کا اتفاق ہو چکا ہے۔ عام انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر سید خورشید شاہ کہتے ہیں، آئی ایم ایف معاہدہ پر دستخط اور بجٹ اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات ہی بحران کا واحد حل ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مایوسیوں سے نکالا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی دریائے راوی اور چناب نے پانی چھوڑ دیا۔ نئی دہلی کی طرف سے پاکستان کو مطلع کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم نے سیلابی صورتحال بارے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی کچھ بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا۔ 65,000 کیوسک پانی کا ریلا اگلے 20 سے 24 گھنٹوں میں راوی میں پہنچے گا۔ ابھی سیلاب پنجاب میں یا کسی بھی جگہ نہیں آ رہا۔ بھارت نے روٹین کا پانی چھوڑا، اگلے 2 ماہ اہم ہے۔ بھارت میں جو بارشیں ہونی ہیں اس کا اثر یہاں پڑے گا۔ ہمارے تمام ادارے اپنی اپنی ایکسرسائز پوری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا دریائے راوی کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا ہنگامی صورتحال میں مجھے یہاں آ کر کھڑا ہونا پڑا تو ضرور آؤں گا۔ غیر ضروری گھروں کو ہنگامی بنیادوں پر کلیئر کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز سہولت کار اور ہینڈلرز کی سازش کچل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت۔ 9 مئی کے یوم سیاح کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دبئی میٹنگ میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان دبئی ملاقاتوں پر بول پڑے، دفاعی نظام میں عدم استحکام آ رہا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہاتھ اٹھا لیا گیا۔ جنرل فیض حمید نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا لیکن میں نہیں گیا۔ جب میں نہیں گیا تو وہ خود ملاقات کے لیے آ گئے، میں نے سسٹم میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں تمام اداروں کو بری طرح تباہ کیا۔ ملک میں 4 سال نفرت کے بیج بوئے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ نوجوانوں کو مثبت ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے۔ اسکرین کی سیاحت کے ذریعے پاکستان کا مثبت بیانیہ اجاگر ہوگا۔ فوجی عدالتوں اور وفاقی پارلیمانی نظام پر پیپلز پارٹی اپنا موقف نہیں بدلے گی۔ 9 مئی کے ملزمان کا
ان کے جرم کے مطابق ٹرائی ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر کمن زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہے۔ عام انتخابات پیپلز پارٹی اپنے تیر کے نشان پر ہی لڑے گی اور حکومت بھی بنائے گی۔ موجودہ اور سابقہ حکمران جماعتیں اسٹیٹس کا تسلسل ہیں۔ جماعت اسلامی ملک میں قرآن کا نظام چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان، کہا قرضوں سے معیشت چلانے پر پی ڈی ایم پی ٹی آئی میں اتفاق ہے۔ سودی نظام جاری رکھنے پر حکمران جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ حکومت میں شامل مذہبی جماعتیں بھی سودی نظام پر خاموش ہیں۔ اور کھیل کے سیاست میں مکس ہونے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کی تباہی کی۔ کھیل اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں۔ فٹ بال ٹیم کی طرح کرکٹ ٹیم کو بھی ورلڈ کپ میچ کھیلنے بھارت جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال بچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلٹن میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے لیے تیار ہوں اور ہم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک ماہ کے اندر اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مشترکہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر دفاع کا اپنے خیال میں کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد قوم کو 5 سال بعد اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ مشکل حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، ہمارے پاس چوائس تھی کہ فوری حکومت سنبھالتے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے، اسمبلی ختم کر دیتے تو آئی ایم ایف اور دیگر امداد کا سلسلہ رک جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ ایک ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ کہا کہ ہزاروں ارب روپے کی بجلی، گیس اور ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو ملک معاشی طور پر در بدر ہوتا رہے گا۔ ایسے شہر ہیں جہاں 82% بجلی چوری ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ نے کہا کہ نگران حکومت پر نواز شریف اور آصف زرداری کا اتفاق ہو چکا۔ عام انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ حکومت اور اتحادی آئین و قانون کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد ہونے میں یکسو ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے پر دستخط اور بجٹ اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ سید خورشید شاہ نے کہا کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات ہی بحران کا واحد حل ہے۔ مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ قوم کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مایوسیوں سے نکالا۔ کراچی اور سندھ سمیت پورے ملک میں مردم شماری شفاف اور قواعد کے مطابق کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کے اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ پی ڈی ایم اے نے سیلابی صورتحال بارے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ میں بتایا گیا کہ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی پوچھ بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا۔ 65,000 کیوسک پانی کا ریلا اگلے 20 سے 24 گھنٹوں میں راوی میں پہنچے گا۔ ریلے کے باعث جسر کے مقام پر دریائے راوی میں کم نوعیت کی سیلابی کیفیت متوقع ہے۔
अलर्ट में मजीद कहा गया है कि इंतजामिया 20 जुलाई तक हसास इलाकों मराला हेडवर्क्स और जसर पर मॉनिटरिंग जारी रखे। अवाम को बारिशों की पेशरफ्त और ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जाए। रावी से मुंसलिक इसला हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखे और अलर्ट रहे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी की सूरत हाल का जायजा लिया और मुतलका हुक्काम को हिफाजती इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि हमें आज सुबह पैगाम आया कि भारत ने अपना पानी छोड़ा है। भारत ने रूटीन का पानी छोड़ा, अभी सैलाब पानी में या किसी भी जगह नहीं आ रहा। अगले 2 माह अहम है। भारत में जो बारिशें होनी है इसका असर यहाँ पड़ेगा। हमारे तमाम अदारे अपनी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं। मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि सूबाई और मकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। हंगामी सूरत हाल में मुझे भी यहाँ आकर खड़ा होना पड़ा तो जरूर आऊंगा। दरिया के अंदर गैर जरूरी रिहाइश गाह नहीं बनी होनी चाहिए। लोगों ने दरिया के अंदर आबादी बनाई हुई है, दरिया के अंदर बनाई गई आबादी को तोड़ना पड़ेगा। निगरान वजीर आला का कहना है कि गैर जरूरी घरों को हंगामी बुनियादों पर क्लियर करेंगे। कई बार जानवरों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारा काम इंसानी जानों को बचाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मुसम्मत की है। अपने एक बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के योम सयाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया मजमूम और शर अंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल हैं। शोहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। वजीर आजम ने मुतलका अदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इकदाम की हिदायत करते हुए कहा कि फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आता। ये सिर्फ साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फर्ज है। आपको नाज़रीन बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत की है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को योम सयाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबरा और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम एक तहरीक थी, अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। जब महसूस हुआ कि दफाई निजाम में अदम इस्तेहकाम आ रहा है तो चेयरमैन पीटीआई से हाथ उठा लिया गया। दुबई में होने वाली मीटिंग में पीडीएम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। जब मैं नहीं गया तो वह खुद मुलाकात के लिए आ गए। फैज हमीद ने मुलाकात में 3 बातें की। मैं आपको सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन देखना चाहता हूं। आपने सिस्टम के अंदर तब्दीली लाई है, मैंने इनकार कर दिया। पेशावर में सीनियर सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह सवाल पीडीएम में मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून ने अब तक इत्तेहाद में शामिल जमातों को दुबई में होने वाली मीटिंग के हवाले से इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको इत्तेमाद में लिया जाना चाहिए था। पीपी हमारे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, इसलिए जहनी और दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। पीडीएम एक तहरीक थी, अब इसकी जरूरत बाकी नहीं है। एक और सवाल के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद करते हुए पीडीएम के सरबरा ने कहा कि इमरान खान अमरीका को गाली भी देता है और इससे यारी भी गांठी जा रही है।
पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। मुल्क में 4 साल नफरत के बीज बोए गए। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवानों को मुस्बत ज़राए अबलाग की जरूरत है। रेडियो और दीगर ज़राए अबलाग कौमी विरसा और वक्त की अशद जरूरत है। स्क्रीन की सियाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत बयानिया उजागर होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि सिनेमा हाउसेस का मकसद नौजवानों को सस्ती तफरी फराहम करना है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा और थिएटर्स बनाए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत नौजवानों को फिल्म साजी के मैदान में मौके मिलेंगे। कहा कि एक खास गिरोह सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में नफरत फैला रहा है। गुज़िश्ता 30 साल के दौरान सिनेमा हाउसेज पेट्रोल पंप बन गए। नौजवानों के लिए डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग लैब नहीं है। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग लैब का कयाम किया गया है। फौजी अदालतों और विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनमा कमर जमान कायरा ने कहा कि 9 मई के मुलजमान का उनके जुर्म के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। फौजी अदालतों में तहरीक इंसाफ के मुकदमात चलने चाहिए या नहीं, हुकूमत गैर जानिबदार है, कोई मुदाखलत नहीं की जा रही। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक अमल पैरा है। उन्होंने मजीद कहा कि सूबों के उनके हिस्से का शेयर देने के सिलसिले में पीडीएम की हुकूमत ने खुलकर वाज़ेह इक़दाम लिए हैं। पीपल्स पार्टी का आज़म है कि दहशत गर्दों के सामने झुकने को हरगिज तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत में इत्तेहादी है। आम इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तीर के निशान पर ही लड़ेगी और हुकूमत बनाएगी। सिराजुल हक ने कहा है कि मौजूदा और साबिका हुक्मरान जमात स्टेटस को का तसलसल है। जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम चाहती है। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कर्जों से मईशत चलाने पर पीडीएम पीपी पीटीआई में इत्तफाक है। सूदी निज़ाम जारी रखने पर हुक्मरान जमातें एक पेज पर हैं। हुकूमत में शामिल मजहबी जमातें भी सूदी निज़ाम पर खामोश हैं। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मुल्क में शरह सूद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इत्तेहादी हुकूमत 15 महीनों में एक वादे पर भी अमल नहीं कर सकी। मुल्क में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी का तूफान जारी है। हुक्मरानों ने आइंदा नस्लों पर भी कर्जों को कोहे हमालिया लाद दिया है। वजीर आजम के मुअव्विन खसूसी अता तारड़ का कहना है कि खेल के सियासत में मिक्स होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की तबाही की। अता तारड़ ने कहा कि खेल और सियासत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। खेल सियासत में मिक्स होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की तबाही की। उन्होंने कहा कि फुटबॉल टीम की तरह क्रिकेट टीम को भी वर्ल्ड कप मैच खेलने भारत जाना चाहिए। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। बाबर की गेम बहुत बेहतर है। अता तारड़ ने कहा कि माजी में चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ प्रोग्राम को खराब करने में अपना किरदार अदा किया। खत लिखवाए गए कि माहिदा ना किया जाए। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में 4 वजीर खजाना तब्दील किए। आईएमएफ का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। आईएमएफ का 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। अता तारड़ ने कहा कि माहिदे से रुपया मुस्तहकम हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है। मुआहदे से हमें दोस्त ममालिक से भी मजीद इमदाद मिलने में मदद मिलेगी। वजीर आजम के मामून खसूसी ने कहा कि तोशाखाना का फैसला आया है, दायरा इख्तियार को माना गया है। आपको नाज़रीन एक बार फिर आगाह करें कि वजीर आजम के मामून खसूसी अता तारड़ का कहना है कि खेल के सियासत में मिक्स होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की तबाही की। अता तारड़ ने कहा कि खेल और सियासत तो मुख्तलिफ चीजें हैं। खेल सियासत में मिक्स होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की तबाही की। उन्होंने कहा कि फुटबॉल टीम की तरह क्रिकेट टीम को भी वर्ल्ड कप मैच खेलने भारत जाना चाहिए। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। बाबर की गेम बहुत ज्यादा बेहतर है।
नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। वफ़द ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि आज हमने जिन्ना हाउस का दौरा किया तो देख कर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस बेदर्दी से चलाया। पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहरमती करना किसी भी लिहाज से कबल माफ़ी जुर्म नहीं है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। वक्त का कहना था कि शरपसंदों ने कायद के घर लहराते कौमी परचम और मस्जिद के तकद्दुस का भी पामाल करने में कोई कसर न छोड़ी। हम किसी और झंडे को नहीं मानते, हमारे लिए सिर्फ एक सब्ज हिलाली परचम ही अहमियत रखता है और इसी के तकद्दुस के लिए हम यकजा हैं। कहा कि कायद के घर तबाही फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों से जल्द इंसाफ और सख्त सजाओं का मुतालबा करते हैं। आपको बताएं कि सियासी और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। वफ़द ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि आज हमने जिन्ना हाउस का दौरा किया तो देखकर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। वक्त का कहना था कि शरपसंदों ने कायद के घर लहराते कौमी परचम और मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम किसी और झंडे को नहीं मानते, हमारे लिए सिर्फ एक सब्ज हिलाली परचम ही अहमियत रखता है और हम इसके तकद्दुस के लिए यकजा हैं। कहा कि कायद के घर की तबाही फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों से जल्द इंसाफ और सख्त सजाओं का मुतालबा करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की कम से कम तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए, 12 या 15,000 से गुजारा नहीं होता। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि हर बार बुजुर्गान दीन के वसीले से तूफान टल जाते हैं, हम माशी बहरान में फंसे हुए हैं। माशी बहरानों की बेहतरी के लिए दुआ की है, आइंदा चंद माह में पाकिस्तानी मीशत बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस अब भी कई जगहों पर पानी खड़ा है, हमें इस माशी बहरान से दवाएं निकाल सकती हैं। वजीर आजम और इसहाक डार ने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमें कुछ ऐसा जरूर करना है कि मुल्क पैरों पर खड़ा हो सके। नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स की कम से कम तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए, 12 या 15,000 से गुजारा नहीं होता। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि हर बार रोजगार दिन के वसीले से तूफान टल जाते हैं, हम माशी बहरान में फंसे हुए हैं। माशी बहरानों की बेहतरी के लिए दुआ की है, आइंदा चंद माह में पाकिस्तानी मीशत बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस अब भी कई जगहों पर पानी खड़ा है, हमें इस माशी बहरान से दुआएं निकाल सकती हैं। वजीर आजम और इसहाक डार ने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमें कुछ ऐसा जरूर करना है कि मुल्क पैरों पर खड़ा हो सके। मादिर मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। मिज़ार कायद के अहाते में वाक़या मादिर मिल्लत की कब्र पर अवाम फातिहा ख्वानी करेंगे। फातिमा जिन्ना मुतहिदा पाकिस्तान की अलामत समझी जाती थी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हर कदम पर मदद की और अपने भाई के शाना पेशाना खड़ी रही, जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमात का सिलसिला जारी रखा। फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को कराची में अपने जाती घर मोहटा पैलेस में इंतकाल कर गई। आपको एक बार फिर बताएं कि मादिर मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। मिज़ार कायद के अहाते में वाक़ मादिर मिल्लत की कब्र पर अवाम फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। फातिमा जिन्ना मुतहिदा पाकिस्तान की अलामत समझी जाती थी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हर कदम पर मदद की और अपने भाई के शाना बिशाना खड़ी रही, जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमात का सिलसिला जारी रखा।
फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को कराची में अपने ज़ाती घर मोहटा पैलेस में इंतकाल कर गई थी। कुछ बात करें मौसम की। महकमा मौसमियात की कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेश गोई। शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए नुमाइश एमेजिना रोड, गुरु मंदिर, सुपरवाई हाईवे, नॉर्थ नासिमाबाद, सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मुट्ठी, पडएदन, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। मरी गलियात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश से कश्मीर, डेरा गाजी खान, कोहलो, सिब्बी और बारखान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुफानी का खतरा है। बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात ने कोयटा, योब, जियारत, बारखान, हरनाई, कलात, लसबेला और खारान में बारिश की पेश गोई की है। सिफर से एक ऐसी इमारत है जिसकी हर ईंट बहुत से हाथों से रखी गई है। ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो कुछ तलबा ने अपने बलबूते पर शुरू किया और आज इसे इस काबिल बनाया कि आवाम को तवज्जो का मरकज बनाया जा सके। सिफर से ने हाल ही में अपना स्क्रीनिंग सेशन करवाया जिसमें कुछ नौजवान यंग टैलेंट को फरोग हासिल हुआ। मुनक्किदा तकरीब में स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिक और उनकी अपनी बनाई गई शॉर्ट फिल्म नसीब का टॉयलेट का भी स्क्रीनिंग करवाई गई जिसने आवाम के दिल जीत लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या भूल गया है तू। सिफर से एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई अपने हुनर को तराश सकता है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो या फिल्म और थिएटर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बाशिंदा। सिफर से का थिएटर भी इनकी शान में चार चांद लगाता है। हाल ही में किया गया प्ले मुलाकात बहुत से लोगों को कम वक्त में जज्बात के सफर कराने में कामयाब हुआ। कुछ नौजवान सितारों ने एक ही सफर पर चलते चलते बनाया ये सिफर से, जिसमें शामिल हैं मिनाहिल फयाज, मुनीब वहीद, दानियाल चौधरी, मुस्तफा शहजाद, उस्मान आसिफ, शमील रफीक, अब्दुल बासित और मोहम्मद मूसा। इनका सफर एक होते हुए इनकी मंजिल भी एक बन गई। कुछ नहीं मांगू, बस है मेरा एक सपना, दुनिया से क्या लेना दे। सिफर से को पाकिस्तान का उभरता चांद बनाने जो सिनेमा और थिएटर जैसे फन को उभरता देखना चाहते हैं। बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स इनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं जो आप, मैं और हम सब देखकर सहरा सकते हैं। मौत एक अटल हकीकत है, ये एक दिन आनी है, चाहे खेल का मैदान हो क्यों ना हो। दौरान कबड्डी मैच बेहोश होने वाला कबड्डी का मायानाज खिलाड़ी अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। लवाहिकीन का अस्पताल ले जाने से इनकार। नवाही इलाके 506 मामू कांचन रोड पर सालाना उर्स बाबा हंदाल के मौके पर थप्पड़ों वाली कबड्डी के दौरान पाकपतन के नवाही इलाके का मशहूर कबड्डी प्लेयर 42 साल जाकिर हुसैन दौरान कबड्डी मैच अपने हरीफ के पे दर पे दाव ताब ना ला सका और उखाड़े में गिरकर बेहोश हो गया। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू के मुताबिक अमला ना खिलाड़ी की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की तो मुरसा ने अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और मतूफी की डेड बॉडी को उसके आबाई इलाका पाकपतन ले गए।
ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر اور سابقہ سی سی پی او لاہور کی رہائش گاہ پر ان کی والدہ کے احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی میں سابق ڈی جی پی ایف آئی رائے محمد طاہر، ڈی آئی جی شعیب خرم جاباز، ڈی آئی جی اختر حیات، شاعر مصنف خلیل الرحمان قمر نے شرکت کی۔ سینئر صحافی اوریا مقبول جان، چیئرمین نیشنل میڈیا گروپ آف نیوز پیپرز اور بیورو چیف کوہ نور نیوز چینل چودھری شہباز ارائی، مفتی عاشق حسین نے، رانا عبد المنان سمیت علماء کرام دیگر نے بھی قرآن خوانی میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایس پی فیصل آباد راؤ نعیم نے ماں کی شان میں نظم پڑھی۔ مفتی عاشق حسین نے خصوصی بیان کیا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت حضرت بابا فرید کے سالانہ عرس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی سی پاکپتن امتیاز کچھی، ڈی پی او پاکپتن کیپٹن طارق ولایت اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار کی توسیع کا عظیم منصوبہ زیر تشکیل ہے۔ اوقاف اور نیسپاک نے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی۔ سما ہال، لنگر خانہ، سیمینار ہال، لائبریری اور صحن کی توسیع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بابا فرید خطے میں رواداری کی علامت ہیں۔ آپ کی تعلیمات فلاحی معاشرے کی تشکیل میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کے 781ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا اہتمام شایان شان ہوگا۔ اسلام آباد سیکرٹری اوقاف نے ڈی سی، ڈی پی او، ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاکپتن، رانا طارق علی، مینیجر اوقاف پاکپتن اظہر فرید بھٹی اور دیگر افسران کے ہمراہ پیش آمد عرس اور دربار شریف کے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ امریکہ کی سیکرٹری خزانہ جینٹ بیلن نے کہا ہے کہ ایک ساتھ رہنے اور عالمی خوشحالی میں حصہ لینے کا راستہ تلاش کرنا امریکہ اور چین کی ذمہ داری ہے۔ بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو میں جینٹ بیلن نے کہا کہ چینی حکام کے ساتھ 10 گھنٹے کی براہ راست ملاقاتیں نتیجہ خیز رہی ہیں اور ان کے بدولت دونوں ممالک کے تعلقات میں استحکام آئے گا۔ جینٹ بیلن 4 روزہ دورے پر چین پہنچی تھی اور آج واپس روانہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کئی اہم معاملات پر اختلاف ہے اور ان کو ایک دوسرے سے براہ راست اور واضح بات چیت کرنی چاہیے۔ امریکی تجارتی پابندیوں کا مقصد چین پر معاشی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ فرانسیسی ہنگامے اور پرتشدد واقعات میں فاسسٹ ٹریک انصاف کا حصول دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ 22 ملزمان پر فاسٹ ٹریک عدالتوں میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ حال ہی میں فرانس میں پولیس کے ہاتھوں 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے بعد عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ اٹھی۔ ملک گیر احتجاج کی صورت میں فرانس بھر سے عوام نے رد عمل کا اظہار کیا اور ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ملکی املاک کو بے تحاشا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ شرپسندوں نے کئی دنوں تک ملک کو یرغمال بنائے رکھا۔ بینک، سٹیڈیم، شاپنگ مالز، غرض یہ کہ اے ٹی ایم مشینز بھی اکھاڑ ڈالی۔ واقعات میں 800 سے زائد پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے جبکہ 1 بلین پاؤنڈ سے زائد کا نقصان ہوا۔ 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کے آج آخری روز فائنل میں چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ سطح سمندر سے 12,264 فٹ بلندی پر جاری میلے میں بڑی تعداد میں سیاحوں نے بھی شرکت کی۔ شندور پولو فیسٹیول دیکھنے کے لیے بین الاقوامی سیاحوں نے بھی شندور کا رخ کیا۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام اپر چترال کے خوبصورت وادی شندور میں منعقد ہونے والے پاکستان کے سب سے بڑے شندور پولو فیسٹیول کا آغاز 7 جولائی کو ہوا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔